اب آپ کو بتائیں کہ انٹرپول نے حسین نواز کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق حسین نواز کے خلاف شواہد ناکافی ہیں جن کی بنا پر ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیے جا سکتے۔ تفصیلات لندن سے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ انٹرپول نے نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ انٹرپول کے 5 رکنی بینچ نے اس حوالے سے 10 اجلاس منعقد کر کے معاملے کا جائزہ لیا۔ حکومت پاکستان نے اپنی درخواست میں حسین نواز پر جو الزام عائد کیے تھے وہ انٹرپول کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہی۔ انٹرپول کمیشن نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ حسین نواز کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے دستاویزات غیر واضح ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے قابل اعتبار شواہد جمع نہیں کرائے گئے۔ ایف آئی اے نے انٹرپول ہیڈ کوارٹرز فرانس کو حسین نواز کی پاکستان حوالگی کے لیے ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے درخواست بھیجی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ پاکستان میں عدالت نے حسین نواز کے دائمی وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ ایف آئی اے نے درخواست میں ایون فیلڈ ریفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دائمی وارنٹ جاری ہونے کے باوجود حسین نواز عدالت میں پیش نہیں ہوئے، لیکن انٹرپول نے حسین نواز کی جانب سے پیش کیے جانے والے ثبوتوں کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ مانچسٹر کے مقامی چرچ میں اسلاموفوبیا کی حوصلہ شکنی اور مذہبی عدم برداشت سے متعلق ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تفصیلات تنویر نقوی کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ مانچسٹر میں اسلام مخالف نظریات کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں رکن یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم، کونسلر ربنواز اکبر، کونسلر احمد علی، بیرسٹر امجد ملک، ناصر محمود چغتائی، محمد جمیل، محمد سعید، امجد حسین مغل، انعام الحق سحری اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سجاد حیدر کریم نے کہا، ثانیہ کرائسٹ چرچ کے بعد برطانیہ بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے واقعات میں اضافہ ہوا، تاہم شرپسند عناصر کو مل کر شکست دینا ہوگی۔ Yes, we have also Islamophobia. We have a rise of racism. But anti-Semitism in Europe, in the United Kingdom, is the canary in the cage. It is the first sign that things are going drastically wrong. تقریب میں شریک سیاسی، سماجی، کاروباری کمیونٹی اور مذہبی شخصیات نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسلاموفوبیا مذہب، رنگ اور نسل کی وجہ سے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ تقریب کے منتظم فادر فلک شیر نے کہا، ثانیہ نیوزی لینڈ مانچسٹر ارینا اور عالمی سطح پر جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، پاک فوج نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ضرب عضب رد الفساد آپریشن کر کے ملک میں امن کا قیام یقینی بنایا۔ تنویر نقوی، 92 نیوز، مانچسٹر۔ لندن میں فلاحی تنظیم المصطفیٰ ٹرسٹ کے سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے مساجد کی انتظامیہ اور کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رائل نواب لندن میں منعقد ہونے والی اس چیریٹی ڈنر میں 1 لاکھ پاؤنڈ کی رقم بھی جمع کی گئی۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی تیار کردہ رپورٹ میں۔ آنکھوں کی بیماریوں سے دوچار بے آسرا اور نادار افراد کی بینائی کی بحالی کے لیے المصطفیٰ ٹرسٹ نے لندن میں چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا۔ تقریب میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں بتایا گیا کہ ٹرسٹ پاکستان میں آنکھوں کی بیماریوں اور آپریشن کے لیے وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے پاکستان اور دیگر ممالک میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ہمارا ٹارگٹ یہ جب ہم چلے تھے تو یہ ٹارگٹ لے کر چلے تھے کہ 1 لاکھ لوگوں کا ہم آپریشن کریں گے۔ 88,000 آپریشن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 2020 تک ہمارا ارادہ ہے ہم 1 لاکھ لوگوں تک پہنچیں گے۔ جب نیکسٹ ایئر اگر ہمیں زندگی وفا کی تو اسی جگہ پر ہم دیکھیں گے 1 لاکھ لوگوں کو ہم پتے بتائیں گے لوگوں کو۔ عبدالرزاق کا کہنا تھا ان کی تنظیم نے روہنگیا کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بنگلہ دیش کے کئی دورے کیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیمپ لگا کر ہزاروں افراد کو آنکھوں کے مفت آپریشن کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے خطاب میں کہا، المصطفیٰ ٹرسٹ کے فلاحی کام اپنی مثال آپ ہیں۔ برما سے پاکستان کے دور دراز علاقوں تک مفت علاج کی فراہمی عظیم خدمت ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر انہوں نے آنکھوں کے جو ہیں کیمپ لگائے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی بینائی واپس آئی ہے۔ تو اس کام کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے، اور پاکستان میں صحت کی سہولتیں اتنی کم ہیں اور ہمارے جو ہسپتال بھی ہیں ان میں بھی فنڈز کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے، لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو جو ہماری اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کمی کو پورا کر رہی ہیں جو پاکستان میں
बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। दीगर मुकर्रीन ने अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के काम की तारीफ़ की और कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ समेत दुनिया भर में फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट वाले फंड रेजिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और इनके कैंप्स जो हैं हमने खुद विज़िट किए हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, तो 88,000 ऑपरेशन इन्होंने जो आंखों के किए हैं, मैं समझता हूँ बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने आज एनुअल चैरिटी डिनर मुनक्किद किया है। माशाल्लाह हमने 88,000 सर्जरीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए और हमारा टारगेट है 1 लाख सर्जरीज का, जो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। हमारे माशाल्लाह डोनर्स बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट से बहुत सारी लाइफ चेंजेस हुई हैं। हमारे अभी MD ने भी बताया है और माशाल्लाह खुशी होती है कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट हमारे डोनर्स के साथ उनके ताउन से माशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम करें। अल्लाह उम्मीद है कि इस कोशिशों को कबूल फरमाए। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने जो काम किया है 88,000 कैटरेक्ट ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। वो कहते हैं हमारा टारगेट 1 मिलियन का है। ये काम तो अल्लाह तौफीक दे हम सब करें। ये इस हार्ड वर्क, इट्स नॉट ईजी। और इन लोगों ने अभी जो आप ये देख रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जितना भी हम अपनी चैरिटीज़ को सपोर्ट कर सकें हमें करना चाहिए। लोगों से ये गुजारिश है कि अगर जो लोग ये सुन रहे हैं कि वो भी दिल खोल के अपने अतियात दें, क्योंकि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और हम लोगों को सब कुछ चाहिए कि हमारा, क्योंकि ये मज़हब भी हमें कहता है ज़कात के लिए, तो ये बहुत ही नोबल कॉज है। Alhamdulillah, such a beautiful event helping humanity. This is what our religion tells us, that help humanity. 88,000 cataract operations have been done around the world. This is the right place to be, and if you want to help, then Al-Mustafa Welfare Trust is the place you need to be helping, because they are serving the whole community, children's orphanages, hostels, hospitals. So Alhamdulillah, this is one of the best and most amazing events that we have been to, where poor people are getting helped. अल-मुस्तफ़ा के साथ काम करती हूँ, उनकी वहाँ की टीम की से भी मेरी काफ़ी अच्छी जो है रिलेशंस हैं और मैं ख़ुद जाके वहाँ पे जो आई कैंप है वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और जो लोगों की लाइफ में डिफरेंस आता है वो मैं ख़ुद अपनी आँखों से एक्सपीरियंस करती हूँ और दुआएं लेती हूँ और मैं समझती हूँ कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। मैंने देखा है कि यहाँ से जितने लोगों का इंटरेस्ट है, देखें इन लोगों ने प्रैक्टिकली मैंने ख़ुद इनका काम देखा है और वहाँ पाकिस्तान में कैंप लगवाए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जेन्युइन जो है ना फंड रेजिंग जो कर रहे हैं, ये वहाँ ख़र्चा जो वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इन लोगों का काम जो है पूरी दुनिया में है और इन लोगों की जितनी मदद की जाए और उसमें अपना हिस्सा डालें वो हमारे लिए कम है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की सपोर्ट की जाए, दे डिज़र्व इट। इस मौके पर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के नए मनसूबाजात के लिए फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें लोगों ने दिल खोलकर 80,000 पाउंड अतिया किए। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के सालाना चैरिटी डिनर पर लोगों का कहना था कि उन्हें मुकम्मल एतमाद है कि अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट को दी गई एक एक पाई सही रास्ते पर खर्च हो रही है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके की हल्फ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरिया कोर्ट डॉक्टर आगा रफीक अहमद खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि वकला की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके की हल्फ बर्दारी की तकरीब ईस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस फेडरल शरिया कोर्ट डॉक्टर आगा रफीक अहमद खान थे। ILC यूके के तमाम मुंतखब ओहदेदारान के साथ साथ वकला की एक कसीर तादाद भी शरीक थी। माने खसूसी आगा रफीक अहमद खान, चेयरमैन खालिद अंजम, जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज और दीगर ओहदेदारान ने कहा कि ILC यूके हर प्लेटफार्म पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इनका जो प्रोग्राम उन्होंने बताया है, ट्रेनिंग देना वकला को, उनकी मदद करना नए वकला की, तो इनसे मेरे ख्याल है बेहतरीन नताइज बरामद हो गए। इलेक्शन से पहले जो हमने अपना मैनिफेस्टो पेश किया, उसमें जो चीज़ें हमने वादे किए
हम इंशाल्लाह ताला इस पूरे साल में मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम वादे पूरे किए जाएँ। ने जो प्रॉमिस किए थे, जो मैनिफेस्टो पेश किया था, हम इंशाल्लाह ताला इनको प्रेस करते रहेंगे कि वो इस पे अमल दरामद करे। जिस तरह वकला के अंदर आपने इत्तेहाद देखा, खूबसूरती देखी, एक यूनिटी जो है वो खुल के सामने आई। उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन साहब जिस तरह उन्होंने मैनिफेस्टो में ऐलान किए, जो वादे किए, और ही हैज़ ऑल द कैपेबिलिटी टू एक्ट अपॉन ऑन हिज मैनिफेस्टो, सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट होल ईयर इंशाल्लाह जो है ना भरपूर तरीके से खालिद साहब के साथ हैं। एक पेशावर वकील जो है वो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो सोशलाइजेशन करे, और वो यहाँ पे सारे के सारे हमारे भाई जो हैं उन्होंने एक तंजीम इंटरनेशनल लॉयर क्लब के नाम से जो बनाई है, उसके लिए इंतहाई ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वकला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उनके डेमोक्रेटिक रवैये हों। इसकी जो स्पेशल बात है वो ये कि ये फर्स्ट कैबिनेट है जो इलेक्टेड कैबिनेट है, और इलेक्टेड चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के थ्रू ये जो ना वो कैबिनेट अनाउंस की गई है। इक़्तिदार का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले साल काम नहीं हो सके, अब न्यू लीडरशिप आई है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए दिन रात काम करेंगे, और इंशाल्लाह हम वकला बरादरी के लिए, वकला बरादरी की वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ILC UK में हमने इस चीज़ का अयादा किया है आज ओत लेकर कि जो काम पिछले साबका तमाम चेयरमैन ने किया था उसको हम इंशाअल्लाह ताला बरकरार रखेंगे और जारी रखेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नई कैबिनेट को, नए चेयरमैन को, नए जनरल सेक्रेटरी को और सारे जो ओहदेदारान हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि वो उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे। मुंतखब ओहदेदारान ने इस बात का अहद किया कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें वकला बिरादरी के हकूक़ की पासदारी के लिए वक़्फ़ करेंगे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। और अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल नात काउंसिल यूके के सदर साद सिकंदर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं बरतानिया में पैदा होने वाले जो पाकिस्तानी बच्चे उर्दू बोल और समझ नहीं सकते, उनके लिए अंग्रेजी नातख्वां हजरात को बुलवाया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं शाहिद मीर से जो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। जी शाहिद, बताइएगा। साथ मौजूद हैं साद सिकंदर अली जो इंटरनेशनल नात काउंसिल यूके के सदर हैं। इनसे हम नात काउंसिल के अगराज़ व मकासद पे और आइंदा होने वाले जो इनके प्रोग्राम हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने ही वाला है, तो इस महीने के हवाले से, बाबरकत महीने के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। साद सिकंदर अली साहब, आप बताइए कि इंटरनेशनल नात काउंसिल के बुनियादी अगराज़ व मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शाहिद मीर साहब। हमारे जो बुनियादी अगराज़ व मकासद हैं यहाँ पर यूके में नात के हवाले से, हमारा ख्वाहिश और हमारा ख्याल ये है कि जो यहाँ पर जो हमारे न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी मोहब्बत है, अकीदत है, उसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जिसमें ना सिर्फ, चूँकि नात जो है ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में पढ़ी जाती है, तो हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ा जाए, ताकि जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उन्हें बताया जाए और वो भी अपना इसमें पार्ट अदा कर सकें। तो आपको पता है कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इस सिलसिले में भी इंटरनेशनल नात काउंसिल अपने खुसूसी प्रोग्राम यहाँ पे यूके में मुनक्कद करने का इरादा रखती है? जी बिल्कुल, चूँकि ये पूरे यूके में है, पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है, इंटरनेशनल नात काउंसिल है, तो हमारा प्रोग्राम है कि रमज़ान में भी एक प्रोग्राम यहाँ पे किया जाए, जिसपे यहाँ के जो ओहदेदारान हैं उनको बुलाया जाए और छोटी सा एक प्रोग्राम किया जाए। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाएंगे, जिसमें उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे, इनामात दिए जाएंगे, जो उसमें नात वगैरह अदा करेंगे उसको इनामात भी दिए जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है आइंदा इंशाल्लाह। वाशिंगटन में वाक़े पाकिस्तानी सिफारत खाने में ऑल लिबर्ट के ज़ेर एहतमाम ईस्टर की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सिफारत खाने का अमला शरीक हुआ। खुर्रम शहजाद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन में ऑल नेबर के ज़ेर एहतमाम ईस्टर की तकरीब का आगाज़ खुसूसी दुआया तकरीबात से हुआ, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका की तरक्की के लिए दुआएं की गईं, जबकि मुक़र्ररीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी भी डाली।
पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि बैनुल अकायद हम आहंगी के फरोग के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। This was the country that I was born in, and this is a country that I'd like to represent. The very flag of Pakistan and the white in that flag represents the minorities, and that white is something that we are legally, morally and constitutionally obligated to protect. ऑल नेबर के नायब सदर इलियास मसीह ने सफीर असद मजीद खान का शुक्रिया अदा किया और बैनुल अकायद हम आहंगी के फरोग के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों को भी सराहा। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर ज़हनों में आते ही उलमाने रहमतुल्लिल आलमीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़लूब खुशी से झूम उठते हैं और इस मुक़द्दस महफ़िल का इनकाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की औलाद पाक के ज़ेर साया मुनक़्क़िद हो तो क़ुलूब मज़ीद मुनव्वर और मुअत्तर हो जाते हैं। कोलालमपुर में सजने वाली ऐसी ही एक अजीमुल शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं जावेदुल रहमान। कोलालमपुर में अजीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसकी सदारत दौर हाजिर के अजीम रूहानी पेशवा शहजादा गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन अल जलानी अल बगदादी ने की। रूह परवर कॉन्फ्रेंस में अमरीका से अल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन याहया अल मनवे, सिंगापुर से अल हबीब हसन अल अतश, मलेशिया से अल हबीब अली ज़ैनुल आबिदीन अल हमीद और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सूफिया कराम, रूहानी शख्सियात समेत हजारों मंदुबीन शरीक हुए। मुक़द्दस महफिल में पाकिस्तान से आए नातख्वान मोहम्मद हसन बिन खुर्शीद समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नातख्वान हजरात शरीक हुए और पुरसोज अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ और दुरूद पाक पेश करके हाजरीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता उलमा और मशाइख ने नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दिलकश पहलुओं पर रोशनी भी डाली। तकरीब के रूहे रवां अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन अल जलानी अल बगदादी ने अपने पुरअसर खिताब में कहा कि अहले ईमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब हासिल करने की तगदो करें। उन्होंने कहा कि कुर्बे इलाही की दौलत इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने से हासिल होती है और इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाशनी सूफ़िया अज़्ज़ाम और औलिया कराम की सोहबत में रहकर ही नसीब होती है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन जलानी अल बगदादी ने उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद, यकजहती, खुशहाली और दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की।
आपको बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर जर्मनी के शहर दराए हेश में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का मज़ीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे असगर मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी जर्मनी के कारकुनान और भुट्टोइज़म से मोहब्बत करने वाले जालों ने दराए हैश में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी मनाई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर सैयद जाहिद अब्बास शाह और जनरल सेक्रेटरी फारूक चौधरी समेत मिर्ज़ा राशिद नसीम और दीगर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो कल भी पीपल्स पार्टी के साथ थे और मुश्किल के इस वक्त में आज भी पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को ख़त्म करने वाले समझते थे कि शायद उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में इस तकरीबात का इनकार जो इस बात का सबूत है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हर जियाले के दिल में ज़िंदा है। ये न सिर्फ हमारा पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि उस शहीद को हमेशा याद रखें जो आजकल पाकिस्तान की दफ़ा का और पाकिस्तान की सालमियत का एक सिंबल है, और उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनाया कि जिससे आज भी इंडिया जैसी बड़ी ताकतें भी जो है उन पर लर्ज़ा तारी है। अंधेरों में धकेलने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया और उसके बाद उसकी बेटी शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी अमल को तक़वियत पहुँचाते हुए जमहूरियत के रास्ते पे वो भी शहीद होगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इनका कहना था कि पाकिस्तानी मईशत तबाही की तरफ जा रही है, जबकि महंगाई के बढ़ते हुए तूफान से अवाम का जीना मुश्किल हो रहा है। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, जर्मनी। अब जरा मोदी सरकार का जिक्र हो जाए तो इंतखाबात से कबल मोदी सरकार और उनके ओछे हथकंडों पर शदीद तनकीद जारी है। भारतीय दानिश्वर और सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने भी मोदी को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि मोदी ने अपने उठाए गए हल्फ की खिलाफ वर्जी की। पुलवामा हमले के बाद मोदी को मालूम था कि इसका रद्द अमल बड़े पैमाने पर आएगा। मोदी ने कश्मीर और पाकिस्तान से मुताल्लिक जो भी कहा वो सब एक ड्रामा था। दही इलाकों में 4 करोड़ अफराद के पास रोजगार नहीं है। अब आपको बताएं कि सवाबी में सजने वाला 3 रोज़ा 8 मेला, जहां मुल्क भर की जामियात से आने वाले तलबा और तालिबात के लिए तफरीह का बायस बना, वहीं तलबा को अपनी सलाहियतों के इजहार का भी खूब मौका मिला। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल की ये रिपोर्ट देखते हैं। सवाबी में वाक़या गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 रोज़ा आर्ट, फैशन एंड थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के दौरान तालिबात ने चेहरों पर नक्शो निगार बनाकर फेस पेंटिंग का मुजाहरा किया। फेस्टिवल के पहले रोज तलबा की थिएटर परफॉर्मेंस ने भी हाजरीन को खूब महसूस किया। निजी इदारे में होने वाले 3 रोजा मेले में आर्ट और थिएटर ने भी अपनी रौनकें बिखेर दी। कैमरा टीम के साथ मुस्तफ़ा कमाल, 92 न्यूज़, सवाबी। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपना इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।